News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices. মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ সংসদত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আলোচনা 3 দিনত 18 ঘণ্টা ধৰি হ'ব আলোচনা আজি সংসদত ভাষণ দিব বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে 10 আগষ্টত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী দেশবাসীলৈ কুৱেট ইণ্ডিয়াৰ আহ্বান কালি ৰাজ্যসভাৰ পৰিঘটনা আছিল সেমি ফাইনেল বিজেপিৰ সংসদীয় কমিটিৰ বৈঠকত মন্তব্য মোদী কুৱেট ইণ্ডিয়া কুৱেট কৰাপশ্যনৰ আহ্বান মোদীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ ফাইনেল খেল হ'ব বুলি মন্তব্য মোদী ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্ববৃহৎ কোকেইন জব্দ হৈছে হোজাই 5 কোটি টকাৰ কোকেইন জব্দ হৈছে জামু মণ্ডল গাঁৱৰ আতাউৰ ৰহমানৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে 660 গ্ৰাম কোকেইন আৰক্ষী জালত আতাউৰ ৰহমান সহ মাতৃ ভগ্নী হোজাই থানাত মাৰাথন জেৰা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ সম্প্ৰসাৰণ লখিমপুৰৰ নকল ফোন জাল নোটৰ ঘাটি দক্ষিণগাঁৱত নকল ফোন নকল টকা বনোৱা মেচিন জব্দ 3 দিনত মহানগৰীত 15 লক্ষাধিক নকল নোট জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 6 জন ধৃত আটাইকেইজনৰ ঘৰ লখিমপুৰত নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কাকপথাৰত বন কৰা শিশু নিৰ্যাতনকাৰী আচ্ছা নেতা মনেশ্বৰ চাওৰা নিশাই উদ্ধাৰ কিশোৰীগৰাকীক নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি কাকপথাৰ আৰক্ষী তদন্ত মনেশ্বৰ চাওৰাৰ শিক্ষয়িত্ৰী পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰৰ অভিযোগ News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices. মিডিয়া 18ৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আটাছুৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ অৰ্ধ উলংঘ প্ৰতিবাদ কিছু সময় পূৰ্বে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলো জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি অৰ্ধ উলংঘ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আটাছুৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে অৰ্ধ উলংঘ হৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি অৰ্ধ উলংঘভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি কিছু সময় পূৰ্বে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই গৈছিলো তেওঁলোকৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে শিৱসাগৰত আটাছুৰ অৰ্ধ উলংঘ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে এই মুহূৰ্তত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ গগৈ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ প্ৰদীপৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰদীপ হয় পাপৰি মই পুনে পুনে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া অৰ্ধ উলংঘ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় এয়া ঘেৰাও কৰিছে মই দেখুৱাই আছো ইয়াত আৰক্ষী আচলতে ইয়াৰ আৰক্ষী পুৰা সম্পূৰ্ণ বেষ্টনীৰ মাজত তেওঁলোকক ঘেৰি ৰাখিছে শিৱসাগৰত দেখা যায় যে কোনো প্ৰতিবাদ হ'লে আচলতে আৰক্ষীয়ে উবিৰ খাই পৰে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ আহিলে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিলেই আৰক্ষীয়ে সকলোকে আচলতে বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেই দৃশ্য আজিও দেখা গৈছে ইয়াত দেখিছে যে প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা হয় প্ৰতিবাদো বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা হয় ইয়াত যদি কিবা খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত মাত মতা হয় কি ক'ব আচলতে সকলো দল সংগঠনক আচলতে ভাতে মৰা যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এইখন চৰকাৰে সেইটো একেবাৰে ফাইনেল হৈ গৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সকলোকে আচলতে মুখ বন্ধ কৰাৰ যিটো নীতি কৰিছে এই নীতি কিন্তু আমি মানি নলওঁ কোনোবাই মানি ল'ব পাৰে আমি মানি নলওঁ আমাৰ যি ন্যায্য দাবী আমাৰ ন্যায্য দাবীৰ কাৰণে সদায় আমি ৰাজ্যত প্ৰতিনিধি আহিম আৰু ৰাজ্যক লগত লৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি ৰাজ্যক সেই চৰকাৰখনক বুজাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম যে আমাক এছটি লাগিবই আমাক আমাৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ এই অধিকাৰ আমাক লাগিবই এই অধিকাৰ নোপোৱা পৰ্যন্ত আমাক কোনেও আচলতে গঁৰালত হাত কাঢ়ি ৰাখিব নোৱাৰে এই দাবী আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ চৰকাৰৰ এই বিৰোধ আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি বিৰোধ কৰি যাম অসমৰ বহিৰাজ্যৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা কিন্তু প্ৰদান কৰা হ'ল ইয়াৰ মাজতে বঞ্চিত হ'ল অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক এটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ লাগিবৰ কাৰণে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে তো সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে বাকী জনগোষ্ঠীখিনিক জনজাতিকৰণ দিছে কিন্তু আমাৰ আহোমক কি কাৰণে দিয়া নাই আহোমকে ধৰি 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সেইটো আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্য দাবী সেইটো আমি বেলেগৰ পৰা কাঢ়ি পানী বিচৰা নাই সেইটো আমাৰ দাবী আমি বিচাৰিছোঁ তো এই চৰকাৰখনে বাৰম্বাৰ আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে তো এই প্ৰতাৰণা কৰাৰ অৰ্থটো কি 24 ইলেকশ্যন আহি আছে 24 যদি ইলেকশ্যনৰ আগতে আমাক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা নিদিয়ে তাৰ কিন্তু উচিত প্ৰতিকাৰ পাব তেওঁ বিজেপি চৰকাৰে
প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই দাবীয়ে উত্থাপন হয়, প্ৰত্যুত্তৰ পাব, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলো ফুটুকাৰ ফেন হয়। তেখেতলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত আমাক এটা টোপ দিয়ে, এটা ললিপপ দিয়ে যে আপোনালোকক জনজাতিকৰণ আমি দিম, কিন্তু নিদিয়ে। এইবাৰ কিন্তু আমি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। অকল আমি ওলাই অহা নাই, আমি গোটেই আহোম ৰাইজক লগত লৈ ওলাই আহিছোঁ। তো সেইকাৰণে 24ত সাজু হৈ থাকিব। কি কৰিম আপোনালোকে 24তে গম পাব। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক আটাচু কৰ্মী আছে, সৰ্বসাধাৰণ জনতা আছে, আৰু মই সেই জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই ধৰণে আৰক্ষী CRPF বাহিনী মোতায়েন কৰি এই ধৰণে বাধা, আচলতে তাত যাতে ভিতৰত যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে এই ধৰণে আৰক্ষীয়েও ইয়াত সম্পূৰ্ণ বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই পৰিৱেশ, শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ। মই আৰু একাংশ নেতাকৰ্মী ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। এয়া শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে, অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আটাচু শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে। তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অহাৰ আগে যিসমূহ বিশাল সভা পাতে, য'ত তেওঁলোকৰ ছুপাৰ কেম্পেইনাৰসকল আহে, তেওঁলোকে তেতিয়া আমাৰ পিতৃপুৰুষৰ নাম লয়, চুকাফাৰ নাম লয়, তেওঁলোকে লাচিত বৰফুকনৰ নাম লয়। তেওঁলোকে এতিয়া এটা ঢাক ঢোল পিটি পেলাই দেখুৱাই আছে যে লাচিত বৰফুকনক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, চুকাফাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে অমুক কৰিব লৈছে, তমুক কৰিব লৈছে। কিন্তু আমাৰ যিটো ন্যায্য দাবী, সংবিধানৰ মাজত বেছি থকা ন্যায্য দাবীটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া দাবী জনাওঁ, তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, অৰ্ধ উলংগ হয় আটাচুৰ প্ৰতিবাদ। তেওঁলোকে অহা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হুংকাৰ দিছে, যাতে নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে। অৰ্ধ উলংগ হৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰদীপ, আপোনাক ধন্যবাদ। লোকসভাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আজি অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আলোচনা হ'ব। গতিকে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আজি আলোচনা হোৱাৰ লগে লগে আজিৰ দিনটোত অন্ততঃ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব, কাৰণ আজি আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। গতিকে আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ পৰা কাইলৈ থাকি পৰহিলে 10 তাৰিখে ইয়াৰ উত্তৰ দিব। এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্য দেখিছোঁ। গতিকে এয়া আজিৰ দিনটোতো একে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना सर मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, पब्लिक जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, सर प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है। उसके बारे में मैंने पूछा, मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेयर कर गरिमा और एक संसद की, उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शराब आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे, तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
कोई भी ऐसा हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोलें, सदन की परंपराओं के अनुसार बोलें। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। मैं ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें,
आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 FIR है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ।
हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है मैंने देश को बचाया, पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है। आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है। आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि ये सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबंग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग्स से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023। 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है that within 2 years time the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers। ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की यह समस्या कमी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में NCRB का डेटा है 1113 केसेस, 2021 में 3611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो।
क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पे चलाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर। लगभग ये जो 6 लाख एम्यूनेशन है, गोला बारूद है, AK-47, ये तो युद्ध के हथियार है, ये युद्ध के अस्त्र है। ये सिर्फ मणिपुर तक नहीं सीमित रहेंगे, ये आज उत्तर पूर्वांचल में भारत के अलग अलग जगह में ये हथियार जाएंगे और भारत के समाज को आज अशांति का वातावरण बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? आज दुख की बात है कि अभी मुख्यमंत्री पहले तो समाज पर दोष ठहरा रहे थे, अब मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और असम राइफल्स पे आज निशाना साध रहे हैं। आज ही हमें सुनने में मिला कि असम राइफल्स, जिसको जिम्मेवारी दी गई है देश को, लोगों को बचाने के लिए, उनको हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के घर के जो विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पूछते हैं कि इतने हथियार कहां से आए? क्या कर रही है केंद्रीय शासित सुरक्षा दल? ये असम राइफल्स किसके अनुसार काम करता है? ये असम राइफल्स गृह विभाग के मंत्रालय से इनको निर्देश दिया जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं, असम राइफल्स के जवान आज मणिपुर के पुलिस पर उंगली उठा रही है। ये बना है 21वीं सदी के भारत में। ऐसे हम समाधान कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई, उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री, आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने एक पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। जब एक सस्पेंडेड इंसर्जेंसी ग्रुप UKLF, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन SS हाउकिप लीगल बयान में, एफिडेविट में यह बात कहता है कि भाजपा ने 2017
और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंथी संगठन का उन्होंने सहयोग लिया। एक लीगल एफिडेविट में यह बात लिखा। यह है इनका राष्ट्रवाद, यह है इनका राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को आज सत्य के दांव पे आज भूल चुका है। यह राष्ट्रवाद है कि जो आज देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज उत्तर पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बातें हैं सारे अभी तक नाकाम रहे। एनआरसी की बात करते हैं, आज तक एनआरसी असम में लागू नहीं हुआ। सीएए की बात करते हैं, ऐसा एक माहौल वहां पे हुआ कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री असम नहीं जा पाए। नागा पीस फ्रेमवर्क 8 साल हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस फ्रेमवर्क में हुआ क्या है। गृह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं। क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शांति की अपेक्षा करें? ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी कि अगर आप समाज, जाति, धर्म के आधार पर बंटवारा करें। आपको साथ में लेना पड़ेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि 2 उत्तर पूर्वांचल के राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पे गोली चला रहे। यह आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है। इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है, इन्होंने कहा था। आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हाँ, हमने ये बात
हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली। जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। यह हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, यह हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लालडेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पूर्व लालडेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने। और निर्वाचन यह है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मीजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं करते? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है। 3 हमारी याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं।
लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोका चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। Our constitution that talks about equality, liberty, justice, fraternity, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। यह है आपका विकास का मॉडल, यह है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। यह कैसा प्रक्रिया है सर? यह कैसा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं। संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा।
চব্জি ক'ৰ পৰা আহে খাৰুপেটীয়া আৰু দলগাঁৱৰ পৰা আহে যিসকলে চব্জি উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে আমাক নিজেও ভাল নাপায় আমিও তেওঁলোকক ভাল পাও নে নাপাও তাতো বহুতবিলাক প্ৰশ্নবোধক চিন জমা হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকক ভাল পাবৰ কাৰণে যিবিলাক কাম আমাৰ বাবে তেওঁলোকে কৰিব লাগে সেইবিলাক কাম তেওঁলোকে নকৰে লাহে লাহে আমি বুজাই আছো এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ যদি বাৰীবোৰ খালী হৈ থাকে আমি যদি কোনো কাম নকৰো নিজৰ যদি গুৱাহাটীৰ গাড়ী কেইখনো উবেৰ গাড়ীও যদি বেলেগে চলাই গুৱাহাটীৰ ফুটপাথৰ দোকানবিলাকো যদি বেলেগে চলাই আমাৰ যদি সমগ্ৰ অসমৰ ব্যৱসায়ীবিলাক আমি বেলেগকে দিও আমি কেনেকে নিজে জাতি হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম এই প্ৰশ্নবিলাক আগতে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা কিবি ভয়ত কবৰ বাবে কুণ্ঠাবোধ কৰিছিল কিন্তু মোৰ মনত এই কাৰণে ভয় নাই কাৰণ মই জানো যে অসমীয়া মানুহক যদি এবাৰ আমি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কৰি দিব পাৰো আমাৰ ৰাজ্যখনক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত আমি পৰিণত হ'ম মই এটাই বিচাৰো কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হৈ মই হেলিকপ্টাৰ দি অহাৰ সুযোগ পাওঁ মই দেখা পাওঁ যে কিছুমান জায়গাত খেতি আৰু কিছুমান জায়গাত খেতি পথাৰ খালী তেতিয়াই মোৰ ওচৰত যোন বহি থাকে তাক মই কওঁ যে এতিয়া অসমীয়া গাঁও আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু আমি খালি চালে হ'ল যে এইখন কোনখন অসমীয়া গাঁও তাৰ মানে যোৱা 20 বছৰত 15 বছৰত আমি খেতি নকৰি কাম নকৰি আমি নিজক বেলেগ এটা পৰিবেশলৈকে লৈ গলো এতিয়া আমি খেতি কৰিলে চৰকাৰে এসময়ত খেতি কৰোতে কৈছিল যে ধান কিনিলে কি হ'ব চৰকাৰেতো ধান নিকিনে কম দামত ধান পেলাই দিব লাগে সৰিয়হ খেতি কৰিলে কি হ'ব চৰকাৰে সৰিয়হ নিকিনে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে সৰিয়হো চৰকাৰে কিনে ধানো চৰকাৰে কিনে মিলেটো চৰকাৰে কিনে আৰু এতিয়া আমি ফুল আদিও চৰকাৰৰ পৰা কিনাৰ বাবে আমি আলাপ আলোচনা কৰি আছো আনকি আমি ইমানলৈকে গৈছো যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি এটা নতুন আঁচনি দিম আমাৰ খেতিয়কসকলে যেতিয়া সমবায়ৰ জৰিয়তে গাখীৰ উৎপাদন কৰিব মানে উৎপাদন কৰি সমবায়ৰ জৰিয়তে যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব প্ৰত্যেক লিটাৰ গাখীৰত চৰকাৰৰ পৰা এক্সট্ৰা কৰি আমি 5 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বেলেগ যি বজাৰত মূল্য পামটো পামেই চৰকাৰেও 5 টকাকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰিব মই কেইদিনমান আগতে আমাৰ অসমত কিছুমান মানুহ আছে যে গুজৰাট বেয়া কৰ্ণাটক বেয়া কেইদিনমান আগতে ইলেকশ্যনৰ কথাত মই গুজৰাট আৰু কৰ্ণাটকত গৈছিলো গুজৰাটৰ খেতিয়কসকলে দিনত আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে দিনত তেওঁলোকে 3 লাখ লিটাৰ গাখীৰ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে আৰু কৰ্ণাটকত 1 লাখ লিটাৰ গাখীৰ তেওঁলোকে 30 কৰ্ণাটকত আজি 80 লাখ লিটাৰ আৰু গুজৰাটত মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই 3 কোটি লিটাৰ গাখীৰ প্ৰত্যেকটো দিনত উৎপাদন হয় আৰু অসমত আমি 1 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰো অসমত 1 লাখ লিটাৰ কৰ্ণাটকত 80 লাখ লিটাৰ আৰু গুজৰাটত 3 কোটি লিটাৰ প্ৰত্যেক দিনাই গাখীৰ উৎপাদন হয় কোনো মহিলা কোনো পুৰুষ ঘৰত এনে নাথাকে গৰু থাকিবই গাখীৰ উৎপাদন কৰিবই আৰু সেই গাখীৰ সমবায়ৰ জৰিয়তে আমুল বা নন্দিনী ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে এতিয়া গাখীৰৰ লগত আমুলৰ বাটাৰ বনাইছে আমুলৰ তেওঁলোকে ঘিউ বনাইছে আমি আমাৰ অসমত মানুহে দৈ খাই ভাল পায় ক্ৰীম খাই ভাল পায় আমি আমাৰ গাখীৰ দি দৈ বনাব পাৰো ক্ৰীম বনাব পাৰো বিহুৰ সময়ত আমাক ইমান ক্ৰীম